کہ ہم نے کس کی قدرت کو فیل کیا یہاں پر. کسی انسان کی نہیں ہے، زمینی بادشاہ کی نہیں ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے. ہم نے اس کی قدرت کو محسوس کیا، اس مسا کو لیا اپنی زندگی کے اندر. ورشپ کے دوران یہاں پر روح القدس کی جنبش جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کام کر رہی تھی. آمین. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس برکت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس برکات کو اپنی زندگی کے اندر، اس مسا کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ 7 سمندر پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، پتال کے اندر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے ڈالرز خرچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خدا کی قربت کو، خدا کی نزدیکی کو لینے کی، خدا کے تابع داری کے اندر آنے کی، خدا کی وفاداری کے اندر آنے کی. روح القدس کے پھل جو سب سے زیادہ عظیم ہے، ایک پھل روح القدس کا جو ہے نا، وہ زندگی کو، نئی نسلوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے. پاورفل بات ہے یہ. بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے یہ سایہ ہمارے لیے کیا یہاں پر قلم بند کرتا ہے. خدا کا بندہ، یہ سایہ جو ہے ایک زبردست قسم کا خدا کا سورما ہوا ہے. یہ سایہ کی جو لائف تھی، ہر انسان کی زندگی کے اندر سال آتا ہے، اس کے بعد نیا سال آتا ہے. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 300. لیکن 300 دن یہ خدا کا بندہ روزے کے اندر وقت گزارتا تھا اور آل ٹائم خدا کی حضوری میں جھکا رہتا تھا. کون بلا؟ یہ سایہ. ایسا خدا کا خادم تھا جو خدا کے دل کی بات کو لے کر وہ کیا کرتا تھا؟ قلم بند کر دیتا تھا. اس قدر وہ خدا کی رفاقت میں، خدا کی شراکت میں کیا کرتا تھا؟ اپنی زندگی کو بسر کرتا تھا. ایک لمحات زندگی کا بھی وہ ضائع نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک ایک لمحات وہ اکٹھے کر کے خدا کی حضوری میں پیش کرتا تھا، دعا کے ساتھ اور روزے کے ساتھ. آپ لوگوں نے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی، پڑھا ہوگا. کیا کہتا ہے؟ 750 سال جیزس کے آنے سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ باتیں اس کے اندر قلم بند کر دی ہیں کہ جو ابھی اتنے سال ہونے کو ہیں. وہ باتیں خدا کے دل میں تھی. اس نے خدا کے دل سے باتوں کو لے کر یسایہ کی کتاب کے اندر قلم بند کر دیا ہے. پرانے عہد نامے کی اس کو انجیل کہا جاتا ہے. یسایہ کی کتاب کو پرانے عہد نامے کی خوشخبری یسایہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے. ہاللیلویہ. آئے ہم دیکھتے ہیں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یسایہ پہلا باب اور اس کی 19-20 آیت ہم پڑھ لیں گے، بلکہ 18-19-20 پڑھ لیں. دیکھیں گے کہ خدا کیا یہاں پر ہمارے لیے کلام کرتا ہے. جی نکالیے جی. اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں. اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. اگر تم راضی اور فرما بردار رہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے. آمین.
खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। और मजे की बात क्या है, 18 आयत क्या कह रही है, आओ बा हम क्या करें, हुज्जत कर। बैठे। और ये मसा जो है, जो हमने इस जगह पर रिसीव किया, लिया खुदा की कुदरत को, जब आप इसको अपने जीवन के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट करके रखेंगे, इसको कायम करेंगे, रखेंगे, तो ये क्या करेगा, चाहे कैसे भी किरमजी गनाह होंगे, खुदा क्या करेगा, बर्फ की मानंद धोकर क्या करेगा, इनको पाक साफ नीट क्लीन कर देगा अपनी कुदरत के वसीला से। और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग कैसे हो, बर्फ की मानंद उनका दिल हो, उनके ख्यालात हो, उनकी सोच हो, ताकि उनमें खुदा काम कहां कहां करता है, सोच में खुदा काम करता है, खुदा दिल में आकर काम करता है, खुदा दिमाग में आकर काम करता है। खुदा चाहता है कि ये चीजें बर्फ की मानंद क्या हो, सफेद हो, नीट क्लीन हो। और आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम राजी हो, ये मसा जो लिया है, ये बरकत जो ली है, अगर तुम राजी हो और फरमाबरदार हो, तो जमीन के अच्छे अच्छे फल क्या करोगे, खाओगे, गले सड़े सूखे नहीं, और एक फल भी नहीं, फल खाओगे। पहला खुदा क्या कर रहा है, बैठकर बात कर रहा है। दूसरा खुदा क्या कर रहा है, गुनाहों को माफ कर रहा है, जिंदगी को नीट क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है। खुदा कह रहा है कि अगर तू राजी मेरे साथ रहे, तो तेरे साथ मैं राजी रहूंगा। मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुझे तेरी जिंदगी के अंदर वो फल दे दूंगा। तेरी जिंदगी के अंदर क्या करूंगा, वो जमीन के फल दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, और वो फल दूंगा जिनके बारे में तू जानता भी नहीं है। वो फल दूंगा जो जिंदगी के अंदर आकर जिंदगी को नहीं सिर्फ बदलेगी, घराने को बदल देगी, नस्ल दर नस्ल बदल जाएगी। और नस्ल दर नस्ल जो लानत चल रही है, जो गुनाह चल रहा है, जो इब्लीस के कंट्रोल है, वो नस्ल दर नस्ल से मैं तोड़ दूंगा अपनी कुदरत की बदौलत। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे साथ राजी होना है, मेरी फरमाबरदारी के अंदर आना है, मेरी ताबेदारी के अंदर आना है, मेरे साथ एग्री हो जाना है, और मैं तेरे साथ अहद करता हूं। और अगर तू इनकार करे और बागी हो, क्यों भाई साहब, इनकार करे तो बागी हो, तो की बनना है, खुदा कहता है भी मैं जानना। कितने लोगों को ये याद था कि जो पिछली बार मैंने यहां पर कलाम आप लोगों को सुनाया था, मैंने आयत भी बाद में कोट करवाई थी, याद है? नहीं याद? ताकत से नो, रास्ता दिखाओ अपना, तवानाई था, बातें याद नहीं है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं हाथ जोड़कर, आप मेरे बहन भाई हैं और आप लोगों को अपनी फैमिली हम समझते हैं, लेकिन अगर आप लोग कलाम को फॉलो ना करेंगे तो यहाँ पर काम नहीं होगा। फिर हम भी ऐसे आएंगे कि भाई आएंगे और बैठकर सिर्फ चले जाया करेंगे, आप लोगों को बरकत नहीं मिलेगी। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कलाम को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, पिछले हफ्ते का भी और उससे पिछले हफ्ते का भी। जो आयत थी वो क्या थी, हबकूक 3 बाब और उसकी 19 आयत थी। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, और वो मेरे पांव को हिरनी कैसे बनाता है, और मुझे मेरी ऊंची जगह पर चलाता है। एक आयत, मैं तो आयत ही एक देता हूं, अगर वो भी याद नहीं रखनी तो हमारा गला इतना फाड़ने का क्या फायदा है? क्या ख्याल है, आने का क्या फायदा? आज जो आया था वो भी एक ही है, यशाया। मैंने 5 मिनट यशाया की हिस्ट्री इसलिए बताई है ताकि आप लोगों के जहन के अंदर ये बात आ जाए।
यशायाह पहला बाब और उसकी 18, 19, 20 आयत हमने पढ़ी है। इसको याद रखना है और अगली बार हमें बताना है कि ये वाली आयत थी भाई, कलाम आजाद करता है और कलाम के साथ राजी होना है आप लोगों ने, इसके साथ इत्तेफाक करना है, इसको अपनी जिंदगी के अंदर लेकर अपनी जिंदगी को बसर करना है, ताकि मेरा खुदा, जिंदा खुदा आपकी जिंदगी से खुश हो। आमीन। तो मैं क्या करूंगा, अगर तुम राजी फरमा बेदार होगे तो मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत दूंगा और जमीन के अच्छे अच्छे फल जो है सारी तेन दे दूंगा। आमीन आमीन आमीन। मैं अच्छे अच्छे फल तुम्हें दूंगा और इस कदर दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह ना रहेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे, ये जरा खतरनाक है, सुनिएगा। अगर इनकार करे और बागी हो तो की होएगा जी, तलवार दा लुकमा हो जाओगे, तलवार दा लुकमा बन जाओगे, लुकमा नवाला बन जाओगे, तलवार चलेगी। अगे नहीं क्या कि गुंजाइश है, अगे लिखा है कि ये खुदा के मुंह से निकला है, इसलिए कि कोई गुंजाइश इसमें है ही नहीं है। जो बात खुदा के मुंह से निकली है उसकी उसमें कोई गुंजाइश होती है? कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेहतर क्या है? राजी होना। क्यों जी? राजी होना और फरमाबरदार होना। इनकार करेंगे तो तलवार का लुकमा बन जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानियां आकर घेर लेंगी, बहुत ज्यादा मुसीबतें आकर घेर लेंगी और वो क्या कर देंगी? तबाही को मचा देंगी, तबाही को लेकर आएंगी। ये नहीं समझ लगेगी कि करना क्या है, तो जाना कितने है, तो राह केड़े ने, राह भी नहीं लबने। अगर बरकतें लेनी है तो खुदा के साथ ताबेदारी के अंदर आना है और उसकी बरकत को लेकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। हर दुख में, हर सुख में उसके साथ वफादार रहना है। तो वो क्या करेगा? आसमान के दरीचों को खोलकर अपनी कुदरत को जारी करेगा। तो क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया कि रूहुल कुद्स का एक फल जिंदगी के अंदर उस लहर को लेकर आता है जो इंसान की समझ और सोच से कई गुना बालातर बाहर है। तो खुदा कह रहे हैं मैं जमीन के सारे फल दांगा, सारे फल दांगा। मेरी बेटी की गल अपने आप नु, मेरे बेटे की गल अपने आप नु उस दुरुस्त जगह ते खड़ा कर जिथे मैं चाहना वा, जिथे की करना मैं चाहना वा उथे खड़ा कर। झूठी तसल्ली नहीं हम देंगे कि भाई या कलाम को तोड़ मरोड़ करने, सीधी बात करेंगे। अगली बार चाहे आने दें आप या ना आने दें, लेकिन बात यह है कि खुदा के कलाम के बगैर जिंदगी के अंदर बहाली नहीं आ सकती, ताजगी नहीं आ सकती। इसको कायम करना पड़ेगा और करना है और करेंगे। आमीन। क्योंकि इसके बगैर खलासी नहीं है, नजात नहीं है, मुखलसी नहीं है, रिहाई नहीं है, ताजगी नहीं है, बहाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस को चाहे मैं दिन पर रात ऐसे गले के साथ लगा कर रखूं और कहूं कि भाई सारा कुछ बाइबल यार इसके ऊपर अमल ना करूं, तो जीरो है सब कुछ। खुदा कहता है वफादार हो जा, मेरी गल नूं मन ते सुन, ते गुनाह जिंजदे भी होणगे मैं धो के परा रख दूंगा ते आसमान दे दरीचों ने खोल देना। खुदा इन चंद बातों के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।